Hello dear students, again welcome back to your mathematics class. So dear students, in today's class we are going to discuss the second exercise of chapter number 18. The name of the chapter number 18 is mensuration, as you can see on the screen. So in previous lecture we have discussed the first exercise of this chapter. Now in today's class we are going to discuss the second exercise of this chapter, means exercise 18.2. So there are total 16 questions given in this exercise and we will discuss all these questions one by one. So dear students, moving on to the first question पे move करते हैं. So first of all let's read the question. सबसे first question को read करते हैं and observe करते हैं क्या डाटा हमें वहाँ पे given है और what we have to find here. So dear students, in question number 1 we have given each side of a rhombus is 13 सेंटीमीटर. नाउ हमारे पास एक रोम्बस है और रोम्बस की जो साइड्स हमें गिवन है उनकी मेजरमेंट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर. नाउ one diagonal is 10 centimeter and another data here given with respect to the rhombus is the diagonal, the measurement of its one diagonal. Now we have to find the length of its other diagonal. So अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो इसका सेकंड डायगोनल है हमें उसकी लेंथ को फाइंड करना है. एंड इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस, और सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पे इसके एरिया को फाइंड करना है. सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डाटा को यहाँ पे लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं जो हमें गिवन डाटा है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ दिस गिवन रोम्बस. तो जो हमें रोम्बस गिवन है सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे इसकी एक रफ फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंड इसमें जो मेजरमेंट्स हमें गिवन है उन मेजरमेंट्स को हम यहाँ पे मार्क करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइक दैट दिस इज द गिवन रोम्बस, ये हमारा यहाँ पे गिवन रोम्बस हो जाएगा. नाउ दिस इज द वन ऑफ इट्स डायगोनल एंड दिस इज द सेकंड डायगोनल हियर. नाउ आई एम मार्किंग हियर this as A, B, C, D and this point is O. Now we have given the side here. So each side of the rhombus is equals to 13 centimeter. So यहाँ पे हमने नोट किया and one of its diagonal is equals to 10 centimeter. So suppose AC, I am writing here the AC diagonal is equals to 10 centimeter. So dear students, in this question we have let ABCD is a rhombus. So this is the given rhombus here. Now according to the data given in the question, AB equals to BC, that equals to CD and that equals to AD, and all these equals to the 13 centimeter. Now AC is one of its diagonal whose measurement is equals to 10 centimeter. So dear students, now these are the given data in the question here. So ये हमें यहाँ पे जो भी डाटा गिवन था क्वेश्चन में वो हमने यहाँ पे नोट किया. नाउ अब जो हमें डाटा गिवन है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे और क्या यहाँ पे हम जान सकते हैं रोम्बस के बारे में. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर दैट O is the intersection point of both diagonals. जो यहाँ पे पॉइंट O है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, हमारे जो डायगोनल्स हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, सो आई कैन सिंपली राइट हियर O intersection point of diagonals. Now so I can easily write here that OA is equals to OC which is equals to 5 centimeter. So I can easily write this here. So हमारे पास जो डायगोनल AC है उसकी हमें मेजरमेंट्स कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ O पॉइंट यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है डायगोनल्स का. मीन्स जो पॉइंट O है वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर रहा है. सो आई कैन सिंपली राइट हियर दैट OA इज इक्वल्स टू OC एंड देयर मेजरमेंट इज इक्वल्स टू दी 5 सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट, this is the given data here. Now first of all we have to, in the first part we have to find the length of its other diagonal. So यहाँ पे हमें सेकंड जो डायगोनल है उसकी लेंथ को फाइंड करना है. मीन्स जो डायगोनल BD है हमें उसकी लेंथ को सिंपली यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ चलिए ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, in this question now
लेट्स लुक एट द ट्राइंगल AOB। सो यहाँ पे जो ट्राइंगल AOB गिवन है हमें, सो उसको मैं यहाँ पे अनदर कलर से मार्क कर रहा हूँ। सो दिस इज द ट्राइंगल AOB। नाउ AOB की अगर हम सिंपली बात करें, सो AOB कंसिस्ट करता है डायगोनल BD के BO पार्ट को। सो अगर हम यहाँ पे BO की वैल्यू को फाइंड कर ले एंड देन हम किसकी वैल्यू को फाइंड कर ले, DO की वैल्यू को फाइंड कर दे, देन सिंपली अगर हम बोथ वैल्यूज को ऐड करेंगे देन हमारे पास मेजरमेंट किसका आ जाएगा, हमारे पास मेजरमेंट आ जाएगा द डायगोनल BD। सो लेट्स सोल्व द क्वेश्चन हियर। सो आगे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सिंपली यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट पार्ट इन ट्राइंगल AOB। सो AOB ट्राइंगल को अगर आप ऑब्जर्व करें देन वहां पे सिंपली हमें ऑब्जर्व हो रहा है दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज जो डायगोनल्स होते हैं एक रोम्बस के वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्रीज। सो ये प्रॉपर्टीज हमने पीछे प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस की है, जहाँ पे हमने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी किया था, अंडरस्टैंडिंग शेप्स के बारे में वहाँ पे स्टडी किया। सो वहाँ पे हम सब ने ये इन सभी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है। सो इन ट्राइंगल AOB, so this is an equilateral triangle, this is an right angle triangle, so that means we can easily use here a theorem which is known as the Pythagoras theorem. So in triangle AOB by Pythagoras theorem I can simply write here that AB square is equals to OA square plus OB square. Now putting the values here, so AB is the side of the rhombus and whose value is equals to the 13 centimeter, and OA we already find here which is equals to 5 centimeter. Now we have to find out the value of the OB square. Now the square of 13 is equals to 169 and the square of 25 is 5 is equals to 25, then plus OB square. Now the value of OB square will comes to 169 minus 25, then it will comes to 144. Now OB is equals to 144 root, then the value of OB will comes to the 12 centimeter. So dear students, this is the value of OB here. Now dear students, the diagonal BD. So diagonal BD की हम simply बात करें, so I can simply write here that the diagonal BD is equals to the value of OB plus OD, because the point O divides this diagonal also into two equal parts. So I can simply write here that BD is equals to 2 into OB. Now putting the value of OB here which is equals to 12 centimeter, then it will comes to 24 centimeter. So the value of the diagonal or the length of the diagonal BD will comes to 24 centimeter. So dear students, that's how you can simply solve the part 1 of this question, and I hope आप सभी को अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया है क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट किस तरह से यहाँ पे सोल्व किया है मैंने। सो बिल्कुल इजी सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था, आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है, डिफिकल्टी हो उस क्वेश्चन को सोल्व करने में। सिंपली जो आपने थ्योरीज और जो आपने फॉर्मूलेज को स्टडी किया है उन्हीं पे बेस था ये हमारा। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हमारा ये क्वेश्चन था। नाउ अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर सेकंड। सो इन द सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस। सो जो हमें गिवन रोम्बस था ABCD, अब हमें इसका क्या करना है, सिंपली यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट पर हम मूव करते हैं सिंपली यहाँ पर। So in the second part, so we have to find out the area of the rhombus. So area of the rhombus. So we know about the formula of the area of the rhombus. So area of the rhombus is equals to 1/2 into diagonal 1 and diagonal 2. Now we have already find out both the diagonals. One diagonal AC whose value is equals to 10 centimeter, which is already given in the question, and the second diagonal BD whose value we find is equals to 24 centimeter. Now putting both these values in the given formula, so 1/2 into 10 into 24, then it will comes to
120 centimeter square. So the area of the given rhombus ABCD is equals to the 120 centimeter. So dear students, I hope आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन. So बिल्कुल easy simple आपका क्वेश्चन था यहाँ पे. Now dear students, moving on to the second question. Now अब second question पे अब move करेंगे. So dear students, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, देन आप वीडियो को पीछे कट कर सकते हैं, देन अगेन उसको वहां पे दोबारा से रिपीट कर सकते हैं. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन हियर. सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन हियर. सो इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव गिवन द क्रॉस सेक्शन ABCD ऑफ अ स्विमिंग पूल इज अ ट्रेपेजियम. सो हमारे पास एक स्विमिंग पूल है और उसमें से हमने कुछ क्रॉस सेक्शन मीन्स कुछ पोर्शन को हमने निकाला और उसको हमने मार्किंग दी ABCD. एंड जो ये हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शन था, ये किसकी तरह का था हमारा? ये सिंपली एक ट्रेपेजियम की तरह का था. मीन्स एक ट्रेपेजियम शेप हमारे पास मिली. नाउ इट्स विड्थ AB is equals to 14 meter and depth at the shallow end is 1.5 meter and at the deep end is 8 meter. Now find the area of the cross section. So we have also given a figure here in this question. So इस क्वेश्चन में हमें एक फिगर भी गिवन है यहाँ पे सिंपली. So अब यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि जो हमारा एक ट्रेपेजियम आया हमारे पास, इसकी जो विड्थ थी वो कितनी थी हमारे पास? 14 मीटर. नाउ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द AB. सो AB यहाँ पे आप क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर सकते हैं डायग्राम में. सो AB की हमारे पास जो वैल्यू है 14 मीटर्स की वन है. नाउ अब जो स्विमिंग पूल का जो ट्रेपेजियम था हमारे पास, इसका जो वन एंड था वो कितना था हमारा? 1.5 मीटर. और जो हमारा डीप एंड है वो कितना है हमें गिवन? 8 मीटर. नाउ वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर. सो डियर स्टूडेंट्स, now as we all know about the formula of the area of trapezium. So writing here the formula. So area of trapezium is equals to 1/2 into sum of parallel sides into distance between parallel sides. So dear students, this is the formula of the area of trapezium. Now putting the values here. So sum of parallel sides. So what are the parallel sides here? So parallel sides are the AD and BC. So both these are the parallel sides here, and we already have the values of these sides. So 1/2 into sum of means 1.5 plus 8 meters. Now multiplied by distance between the parallel sides. So here the distance between these both parallel sides is AB. So AB is the distance, and we already have the value of AB, which is equals to 14 centimeter. Now we all put all these values here. Now after solving this, we simply got here the value of the area of the trapezium, which is equals to 66.5 meter square. So dear students, this is the value of the area of the given trapezium ABCD. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है. सो बिल्कुल इजी सिंपल आपका क्वेश्चन था. वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 18.2. सो बिल्कुल एक छोटा सा आपके पास बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. सो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं हम सिंपली. So dear students, in the question number 3 we have given the area of a trapezium is 360 meter square. So we have given the area of a trapezium which is equals to 360 meter square. So first of all let's write this given data here. So we have given the area of trapezium which is equals to 360 meter square. Now we also given here the distance between two parallel sides which is equals to 20 meter. Now distance
between two parallel side which is equals to 20 meter, and one of the parallel side is, so one side length of one parallel side is equals to 25 meter. Now we have to find out the length of the other parallel side. So let the unknown parallel side is equals to x. Now so this is the given data here. So ये क्वेश्चन में हमें given डाटा था. नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी इस फॉर्मूले को डिस्कस किया है. सो आई एम ऑल्सो अगेन राइटिंग हियर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, the area of trapezium is equals to 1/2 into sum of parallel sides multiplied by distance between parallel sides. Now putting all the given values in this formula. So जो फॉर्मूले में जो में डाटाज वैल्यू है यहाँ पे वैल्यूज गिवन है उन सभी वैल्यूज को हम फॉर्मूले में पुट करते हैं. सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर. सो वी हैव गिवन द एरिया विच इज इक्वल्स टू 360 मीटर स्क्वायर. नाउ 1/2 into sum of parallel sides. So we have given one parallel side, measurement of one parallel side which is equals to 25 meter, and another parallel side we taken is equals to x. Now we also given here the distance between the parallel sides which is equals to 20 meters. Now so I can simply write here like that 25 plus x is equals to 360 into 2 divided by 20. So here these all cancel each other. Now here 25 plus x is equals to 36. Now x is equals to 36 minus 25. Then the value of x will comes to the 11 meters. So here the value will comes to 11 meter. So dear students, this is the unknown parallel side. This is the length of the unknown parallel side which comes to 11 meter. So dear students, I hope आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है. So बिल्कुल इजी सिंपल आपका क्वेश्चन था. सिंपली आपको एक ही फॉर्मूले को यूज करना था और उसी में सभी वैल्यूज को पुट करके आपको सॉल्व करना था. Now dear students, moving on to the question number 4. So question number 4 पे हम मूव करते हैं. So dear students, first of all let's read the question here. So question को पहले हम रीड करते हैं simply. So dear students, in the given question find the area of a rhombus whose side is 6.5 centimeter. So we have given here a rhombus and we have to find out the area of this given rhombus, and the one of the side is equals to 6.5 centimeter, and its altitude we also given here the value of its altitude which is equals to 5 centimeter. Now if one of its diagonal is 13 centimeter long. So अगर यहाँ पे इसका एक diagonal किसके इक्वल हो 13 सेंटीमीटर के इक्वल हो, then find the length of the other diagonal. Then हमें जो other diagonal है उसकी लेंथ को भी सिंपली यहाँ पे क्या करना है फाइंड करना है. सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो कंसेप्ट है वो लगभग सेम है. लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, जो दूसरा डायगोनल है उसकी लेंथ को फाइंड करने के लिए जो हमने बिल्कुल सेम कंसेप्ट कहाँ पे डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था. सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट ऑल द गिवन डाटा हियर. सो जो भी डाटा में गिवन है उसको सबसे पहले हम राइट करते हैं. सो वी हैव गिवन अ रोम्बस हियर. सो हमें एक रोम्बस गिवन है यहाँ पे सिंपली. सो रोम्बस की अगर मैं सिंपली बात करता हूँ, सो यहाँ पे हम एक रफली फिगर बनाते हैं गिवन रोम्बस की. सो लाइक दैट
These are the diagonals of the given rhombus, and I am marking this as A, B, C, D, and this point is O, the intersection point of both the diagonals here. So we have given A, B, C, D is a rhombus. Now, in the given rhombus, we have given the value of BD. BD is one of its diagonal, which is equals to 13 centimeter log, and its all four sides are equal. So AB equals to BC equals to CD equals to AD, and all these equals to 6.5 centimeter. So dear students, this is the given data, and we also given here the altitude. The altitude here, the value of altitude is AC. AC is the altitude here, which is equals to the 5 centimeter. So dear students, now first of all we have to find out the area. So सबसे first हमें first part में हमें area find करना है. So we all know that the area of rhombus is equals to 1/2 into product of diagonals. Now the diagonals are 1/2 into diagonals are BD and AC, and we already have the values of both these diagonals. The value of BD is equals to 13 centimeter, and the value of AC, which is also equals to the altitude of rhombus. So dear students, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. जो altitude AC है वो ही आपका यहाँ पे second diagonal भी है. Means the value of both the altitude and the second diagonal AC of the given rhombus are equal, and the value of AC is equals to the 5 centimeter. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, सो अगर हम इनकी यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करें, देन वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो अराउंड आएगी 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन रोम्बस हेयर. सो आई होप आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया है. जो फर्स्ट पार्ट है, मीन्स हमने किस तरह से यहाँ पे एरिया को फाइंड किया गिवन रोम्बस के. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम सेकंड, जो इसका सेकंड डायगोनल है उसकी वैल्यू. सो वो ऑलरेडी हमें पता है. जो यहाँ पे एल्टीट्यूड AC गिवन है वही यहाँ पे क्या है, सेकंड डायगोनल है. सो द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. सो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हमारी यहाँ पे लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल की ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आ गया है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 पे सिंपली मूव करते हैं. So first of all, dear students, let's read the question number 5 here. So dear students, from the adjoining figure calculate. So हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है और इस फिगर को ऑब्जर्व करके हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है. So in the first part we have to find out the area of trapezium ACDE. So ACDE. So this is the trapezium here, and we have to find out the area of this trapezium. Now in the second part we have to find out the area of parallelogram ACDE. So ACDE. So this is the parallelogram here. So note ACDE, ABDE. ABDE. So this is the parallelogram here. So we have to find out the value of this parallelogram. And in the third part we have to find out the area of the triangle BCD. So this is the triangle here, and we have to find out the value of this triangle. So dear students, moving on to the first part. So first part पे हम simply move करते हैं यहाँ पे. So dear students, in the first part we have to find out the area of trapezium. So area of trapezium ACDE is equals to, किसके इक्वल होगा हमारा ये, 1/2 into sum of parallel sides, 1/2 into sum of parallel sides into distance between
parallel sides. Now putting the values here, so 1 upon 2 into, now this sum of parallel sides. So let's observe the डायग्राम here. So डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होंगी हमारी. So dear students, now this is the trapezium here, ACDE. Now the side AC and ED, these are the parallel sides here, and the value of these sides we have already given here. So first of all I am writing the side here. So AC plus ED, AC plus ED, these are the parallel sides, and the distance between these parallel sides is equals to the now marking these as this point as G and this point as F. So FG is the distance between these two parallel sides. So FG here. Now putting the values here. So 1 upon 2 into the value of AC given here is equals to 13 centimeter, and the value of ED here is equals to 7 centimeter, and the value of the distance between these parallel sides means FG is also given here, which is 6.5. Now also putting the value here. Now after solving we got here 1 upon 2 into 20 into 6.5. Now the value will comes to 65 meter square. So this is the value of the area of the given trapezium ACDE. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का अच्छे से समझ में आ गया है. सो बिल्कुल इजी सिंपल यहाँ पे आपका पार्ट था, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था आपका. बस आपको ध्यान से कंसंट्रेट करके आपको सभी वैल्यूज को अच्छे से फाइंड करना है, बिकॉज जो भी वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो सभी आपको डायग्राम के अंदर गिवन है. सो आपको डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट. सो सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं. सो यहाँ पे मैं जो भी अभी मैंने यहाँ पे सोल्व किया फर्स्ट पार्ट उसको मैं रफ कर रहा हूँ, देन हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेकंड पार्ट, सो सेकंड पार्ट में हमें सिंपली क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDE. So ABDE is the given parallelogram here, and we have to find out the area of this parallelogram. Now dear students, the formula for the area of parallelogram is, so पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा सिंपली. सो आई होप आप सभी ने अच्छे से फॉर्मूलेज को लर्न किया हुआ है, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले हमें यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज गिवन है. सो अगर आपको वो लर्न नहीं है देन आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे अच्छे से. सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू distance between parallel sides. Distance between parallel sides. Now the value of the base of this पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम क्या है हमारा यहाँ पे, सो उस पैरेललोग्राम को यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ सिंपली. सो पैरेललोग्राम था हमारे पास ABDE. सो B, D and E. Now we have given, so बेस क्या होगा यहाँ पे हमारा, सो बेस हम ED भी ले सकते हैं, AB भी ले सकते हैं, बट जो वैल्यू हमें गिवन है वो AD की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है प्रॉपर. सो हम बेस यहाँ पे किसको लेंगे, बेस हम लेंगे ED. सो ED here is the base and the distance between the parallel side is equals to the FG. सो हमने जो ये पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए हैं FG, सो ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस होगा इन सभी के बीच में. सो FG is the distance between the parallel sides. Now putting the values here, so 7 into 6.5, then it will comes to 45.5 meter square. So dear students, this is the area of the given parallelogram ABDE. So dear students, that's how we simply solve the second part here, and we find out the value of
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। सो बिल्कुल इजी सिंपल आपका यहाँ पे क्वेश्चन था गिवन। नाउ अब मूव करते हैं हम थर्ड पार्ट के लिए। सो थर्ड पार्ट पे अब हम मूव करें सिंपली। सो इन द थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। सो हमें यहाँ पे जो ट्राइंगल गिवन है इस फिगर में BCD, उसकी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है एरिया की। सो यहाँ पे मैं सिंपली मार्क कर रहा हूँ जो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे गिवन है। So this is the triangle here BCD. Now third part, area of triangle BCD, and we have already know about the formula for the area of triangle, which is equals to 1/2 into base into height, or we can simply say the altitude. Now here the base of the triangle is, so triangle जो हमारा यहाँ पे गिवन है इसका जो बेस है वो कितना गिवन है, मैं सिंपली यहाँ पे BC गिवन है। एंड जो हमारा यहाँ पे हाइट होगी, सो सिंपली हाइट, दिस इज द हाइट हियर। नाउ आई एम मार्किंग दिस एज H। सो ये मैंने यहाँ पे H मार्क किया। नाउ बेस हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा बेस हो जाएगा BC हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस हो जाएगा सिंपली। सो 1/2 इंटू BC इंटू DH। नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ DH की हमें वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी सिंपली बिकॉज यहाँ पे ये जो हाइट है DH वो किसके इक्वल होगी, जो हमने प्रीवियस पार्ट में मार्क किया था FG। सो DH जो यहाँ पे है वो किसके इक्वल है, FG के इक्वल है। एंड इनकी वैल्यू कितनी गिवन है, 6.5 मीटर गिवन है। सो यहाँ पे हमें DH की वैल्यू पता चल गई है। नाउ अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपली AC की, जो AC है वो सिंपली हमारा सम है AB plus BC, and the value of AC is equals to 13 meter, and the value of AB is equals to the 7 centimeter, because these are the equal sides of a parallelogram, and we have to find out the value of BC here. So BC is equals to 13 minus 7, then it will comes to 6 meter. So अब हमारे पास यहाँ पे BC की भी वैल्यू आ गई है। Now putting both these values in the given formula, so फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करते हैं सिंपली यहाँ पे। So 1/2 into the value of BC comes 6 centimeter, and value of DH is equals to 6.5 centimeter. Then after dividing and multiplication we got the value here 19.5 meter square. So dear students, this is the value of the area of the triangle BCD. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया है क्वेश्चन। सो बिल्कुल सिंपल यहाँ पे इजी क्वेश्चन था आपका, कोई यहाँ पे ट्रिकी ये क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट आपके कंसेप्ट और फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे सिंपली मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 6 हियर। सो इन द गिवन क्वेश्चन हियर, the area of a rhombus is equal to the area of a triangle whose base and corresponding altitude are 24.8 centimeter and 16.5 centimeter respectively. So dear students, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें सिंपली एक रोम्बस गिवन है, एंड द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एंड वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ द बेस एंड द corresponding altitude of the triangle here. So first of all, let's write all the given data here. Now first of all, let's draw rough figures of the given rhombus and the triangle. So here this is the rhombus, and I am marking here this as A, B, C, D, and this is the given triangle here. I am marking this as E, F, G. Now the base of this triangle is easy, and the value of this is 24.8 centimeter, and from point F, and this is point H,
Now this is the altitude or height, and the value here given is 16.5 centimeter. Now moving on to the question. Now if one of the diagonals of the rhombus is 22 centimeter, then find the length of the other diagonal. So यहाँ पे मैं एक diagonal की value given है. So suppose the diagonal, so हमारे पास यहाँ पे जो diagonal है वो कोई भी हम डायगोनल ले सकते हैं. सो सपोज यहाँ पे मैंने जो डायगोनल बी डी है वो लिया और उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास गिवन 22 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन. सो इन द गिवन क्वेश्चन ए बी सी डी इज अ rhombus and EFG is a triangle here. Now we have given the area of rhombus is equals to the area of triangle. Now triangle which is EFG. Now putting the values here. So area of rhombus, the formula for the area of rhombus is equals to 1/2 into the product of both diagonals, means BD into AC, which is equals to the area of triangle, which is equals to 1/2 into base into height, and base here is the EG and height here is the FH. Now putting the values here. So 1/2 into BD is equals to 22 centimeter, and we have to find out the value of the AC, which is the other diagonal, and 1/2 into the value of EG is equals to 24.8 centimeter, and the value of FH is equals to 16.5 centimeter. Now after dividing here, so after dividing and multiplication, so I can simply write here like that the value of AC is equals to, AC हमारा किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, सिंपली AC हमारा इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 12.4 into 16.5 upon 11, and after solving this we got the value of the AC, which is equals to 18.6 सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट, जब आप यहाँ पे इन सभी को सोल्व करोगे आफ्टर डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, जो हमारे पास वैल्यू आएगी AC की, विच इज इक्वल्स टू दी 18.6 सेंटीमीटर. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ वी सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन हेयर. सो आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है. सो बिल्कुल इजी सिंपल यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन था. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 पे अब हम मूव करते हैं. So dear students, in the question number 7 we have given the parameter of a trapezium, which is equals to 52 centimeter. Now if its non-parallel sides are 10 centimeter each and its altitude is 8 centimeter, then find the area of the trapezium. So अगर यहाँ पे हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल द पैरामीटर, जो ट्रेपेजियम है उसका हमें पैरामीटर गिवन है, देन हमें उसका एल्टीट्यूड गिवन है विच इज 8 सेंटीमीटर, एंड देन हमें क्या गिवन है, वहाँ पे हमें लेंथ गिवन है. किसकी लेंथ गिवन है, नॉन पैरेलल साइड, वन ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड विच इज इक्वल्स टू दी 10 सेंटीमीटर. नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सिंपली यहाँ पे हमें फाइंड करना है एरिया, जो ट्रेपेजियम है उसके एरिया को हमें फाइंड करना है. नाउ so first of all let's write all the given data here. So we have given the parameter of trapezium, which is equals to 52 centimeter. Then the length of non-parallel side, which is equals to 10 centimeter, and the altitude here which is equals to 8 centimeter. So dear students, these are the given data here. Now dear students, if I write here that the length of parallel sides, the length of parallel sides is equals to parameter
minus 2 into parallel sides into non-parallel side. So here this is the non-parallel side. So ये हमारे यहाँ पे non-parallel side हो जाएगी. Now putting the values here. So parameter is 52, then 2 into 10, then it will comes to 52 minus 20, then it will comes to 32 centimeter. So we have find out the length of नॉन पैरेलल साइड. सो जो हमारी नॉन पैरेलल साइड है उनकी लेंथ हमारे पास आ गई है, सम आ गया है उनकी लेंथ का हमारे पास. नाउ वी कैन सिंपली फाइंड आउट हेयर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो अब हम सिंपली यहाँ पे ट्रेपेजियम के एरिया को फाइंड कर सकते हैं. सो हेयर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम the area of trapezium here is equals to 1/2 into sum of parallel side into altitude. Now 1/2 into sum of parallel side will comes to 32 and the altitude given here is 8. Now the value will comes to 32 into 4 which is equals to 128 centimeter square. So dear students, this is the area of the trapezium here. So ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, given trapezium का area आ जाएगा. So dear students, I hope आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया है अच्छे से. Now dear students, moving on to the question number 8. So question number 8 पे simply move करते हैं. So in the question number 8 we have given the area of a trapezium which is equals to 540 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो हमें एरिया गिवन है ट्रेपेजियम का जो किसके इक्वल है, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर के गिवन है. नाउ इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज 7:5. सो जो उसकी पैरेलल साइड्स है उनका अगर रेशियो कितना है 7:5 है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 18 सेंटीमीटर. और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 18 सेंटीमीटर है. देन फाइंड द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स. देन अब हमें क्या करना है, सिंपली जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ को फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट ऑल द गिवन डाटा हियर. सो जो भी डाटा हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल उस डाटा को हम सिंपली यहाँ पे राइट करते हैं. सो वी हैव गिवन हियर द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो एरिया ऑफ trapezium is equals to 540 centimeter square and the altitude means the distance between the parallel sides is equals to 18 centimeter and ratio of lengths of parallel sides is equals to 7:5. So I can simply here say that let lengths of parallel sides is equals to 7x and 5x. So now the area of trapezium. Now the value of area of trapezium is equals to 1/2 into sum of parallel sides multiplied by altitude. Then it will comes to 540 is equals to 1/2 into the sum of parallel sides is equals to 7x plus 5x and the value of altitude is 18 centimeter. Now here it will comes to 9. Then after which I can simply write here that 540 is equals to 1/2 into 12x into 9. Now so I can simply write here like that x is equals to 540 upon 9 into 6. Then the value of x will comes to 1
then the value of x will comes to around 5 centimeter. So here this is the value of the x. So अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू आई है. नाउ अब बात करते हैं लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. जो लेंथ होगी हमारी पैरेलल साइड्स की, लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स. So one is equals to 7x and another one is equals to 5x. So putting the value of x here, so it will comes to 35 centimeter, and here this 5 into 5, then it will comes to 25 centimeter. So dear students, these are the values of the length of parallel sides. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है. सो बिल्कुल इजी सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 पर हम सिंपली मूव करते हैं यहाँ पर. सो in the question number 9 we have given we have to calculate the area enclosed by the given shapes. All measurements are in centimeters. So we have given here some shapes, some different type of shapes, and we have to calculate the area enclosed by the given shapes. So हमें यहाँ पे क्या करना है, एरिया को फाइंड करना है. जो एरिया क्या हुआ है यहाँ पे एनक्लोज्ड हुआ है by the given shapes. Now dear students, here so first of all let's draw here some points. So first of all let's marking here. So this is point A, B, C, D, E, not here E, this is point E, F. Now dear students, this is the marking here. Now if I draw the point C like that, a perpendicular line here, and then this point from here. Now this is the point G here. Now so I can simply say here that the CDEG is a square here. ये हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया है. Now BC and this point H, BCH here this is a triangle. ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया है. And the area of the square, area of the not square, this is rectangle. So ये हमारे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है. So उसका स्क्वायर हमारे पास DC not DC here, DCGE. नाउ DCGE. सो ये अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया है, एक ये हमारे पास एक रेक्टेंगल हो गया है. सो आई एम राइटिंग हियर. सो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ. सो एरिया ऑफ शेप. सो फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट मार्क कर रहा हूँ. सो इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर AHGE. सो AHGE. सो AHGE जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारे पास एक स्क्वायर है. सो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया है मार्क. नाउ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCH प्लस एरिया ऑफ rectangle DCGE. Now putting the values here. So area of square AHG is equals to side into side. So the value here is equals to the 5 centimeter. Now this is total 7 centimeter, and when we subtract the 2 from this 7, then it will comes to 5 centimeter, and this is also 5 centimeter, and this is also 5 centimeter. So 5 into 5 plus area of triangle, which is equals to 1/2 into base into height. So 1/2 into base हमारा है 2 सेंटीमीटर, एंड हाइट हमें कितनी गिवन है, हाइट हमारी हो जाएगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर. बिकॉज हियर 5 ये हो गया हमारे पास और 4 ये है, दोनों को ऐड करके हमारे पास तब जाएगा, तब हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी. नाउ प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड द वैल्यू हियर इज 4 into 3. नाउ इट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 9 plus 12, then it will comes to 46 centimeter
square. So dear students, this is the area enclosed by the given shapes. So dear students, अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करना है और आपको इस फिगर में से उन शेप्स को यहाँ पे फाइंड करना है जिनकी आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हो एरिया के लिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे इसमें स्क्वायर को फाइंड किया, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर आई कैन इजिली फाइंड. फिर देन मैंने यहाँ पे इसमें से एक ट्राइंगल को फाइंड किया, बिकॉज ट्राइंगल का एरिया भी मैं इजिली फाइंड कर सकता हूँ. और देन आफ्टर विच मैंने यहाँ पे क्या फाइंड किया, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल को फाइंड किया, उसको ऑब्जर्व किया, बिकॉज एक रेक्टेंगल का एरिया भी मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ. सो डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर फाइंडिंग दीज फिगर्स आई फाइंड द एरिया ऑफ दीज फिगर्स एंड देन एड देम, और उनका जो सम आएगा वो हमारे इसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ द शेप, शेप के इक्वल हो जाएगा शेप की. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड शेप के लिए. सो अब हमें सेकंड शेप का जो एरिया है अब हमें उसको फाइंड करना है सिंपली यहाँ पे. सो डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ जो भी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने सोल्व किया. So dear students, now in this question, in this second part, so second part की आप बात करें यहाँ पे, so सबसे फर्स्ट मैं इसको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. So this point is A, this point is B, this point is C and this point is D. So अगर आप यहाँ पे क्या करें, हम ए बी सी डी ली. सो ए बी सी डी यहाँ पे सिंपली हमें क्या ऑब्जर्व हो रहा है, एक स्क्वायर ऑब्जर्व हो रहा है. अगर हम इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करें आपस में, देन ये हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर हो गया. सो अब ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में से ये एक फिगर को हमने क्या किया है, सपोज यहाँ पे कट किया हुआ है. सो इस फिगर का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से माइनस करेंगे. सो आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट एरिया ऑफ शेप is equals to area of square ABCD subtract. now अब देखो यहाँ पे सिंपली, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, एक ट्राइंगल आ रहा है हमारे पास. इसको मैंने मार्क किया यहाँ पे E F एंड दिस पॉइंट एज G, दिस पॉइंट एज H एंड दिस पॉइंट एज J. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ट्राइंगल आ रहा है, ट्राइंगल EFG. और एक हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, एक हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल आ रहा है. कौन सा ट्राइंगल, HIJ, एक ही हमारे पास ट्राइंगल है. सो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को ऐड करके और किस में से सब्सट्रैक्ट कर दूं, जो स्क्वायर है ABCD इसके एरिया में से सब्सट्रैक्ट करूं, देन सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी एरिया एनक्लोज्ड बाय द शेप. सो आई कैन सिंपली राइट हियर द एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG माइनस area of triangle HIJ. then putting the values here. so area of square, so square के यहाँ पे sides कितनी given है, 9. so it will 9 into 9 now minus area of triangle EFG. so area क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, सिंपली 1/2 बेस इंटू हाइट. सो यहाँ पे अब देखो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल यहाँ पे जो लेंथ है CD ये कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और EF और DE ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर. मीन्स इफ वी सब्सट्रैक्ट 9 माइनस 4 देन हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू दी 5. सो 1/2 इंटू 5 एंड हाइट यहाँ पे कितनी गिवन है हमें, 7FG, ये हमारी हाइट हो गई 7. नाउ प्लस अब हमें सिंपली यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है सेकंड एरिया जो ट्राइंगल का है हमारे पास, सिंपली यहाँ पे. सो 1/2 इंटू बेस यहाँ पे क्या होगा, अगेन हमारे पास सेम बेस रहेगा, 5 एंड हाइट भी सेम रहेगी हमारे पास. नाउ 9 इंटू 9 विल कम्स टू 81 माइनस, नाउ ये हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली 5 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 35/2. then plus 35/2.
सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेकिंग द एलसीएम हियर। सो अब हम यहाँ पे सिंपली एलसीएम लेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ आपको। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर 81 माइनस 35/2 plus 35/2. Then after taking the LCM here, it will comes to 81 minus 70/2. Now also taking here LCM, so 2 is equals to 162 minus 70. Then it will comes to 92/2. Then after dividing, it will comes to 46 centimeter square. So dear students, this is the area enclosed by the given shape here. So dear students, I hope आपको अच्छे समझ में आ गया है क्वेश्चन। सो बिल्कुल इजी सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे अच्छे से स्टडी करना है फिगर को, बिकॉज फिगर में ही सभी कुछ आपका जो भी हिंट है, क्वेश्चन जो आंसर है, सॉल्यूशंस है, वो सभी फिगर में ही प्रेजेंट है। बस आपको सिंपली क्या करना है, फिगर को बहुत ही अच्छे से आपको वहां पे ऑब्जर्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। So dear students, in the question number 10 we have given a sketch. So from the adjoining sketch calculate the length of AD. So AD जो है हमारे यहाँ पे सिंपली ये, इसकी हमें लेंथ फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, जो एक कंप्लीट हमारे पास ट्रेपेजियम है, हमें इसकी एरिया को फाइंड करना है। एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD, और जो BCD ट्राइंगल है, हमें उसके एरिया को क्या करना है, फाइंड करना है। सो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, चलिए अपने गिवन डाटा को। सो सबसे फर्स्ट हमें AD फाइंड करना है। सो देखिए, अगर AD को आप ऑब्जर्व करें, सो AD इज अ पार्ट ऑफ द ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल ABC है उसका ये एक पार्ट है। सो आई कैन सिंपली राइट हियर, सो इन पार्ट फर्स्ट इन ट्राइंगल ABD। सो ABD हमारा ट्राइंगल है। सो इस ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो पाइथागोरस थ्योरम में इजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सो आई कैन सिंपली राइट हियर BD, the square of BD is equals to the square of AB plus the square of AD. Now putting the values here, so it is 41 square is equals to AB. AB is 40 square and AD square. Now here the square of 41 will comes to 1681 and the square of 40 is 1600 plus AD square. Now 1681 minus 1600, then it will comes to AD square. Then the value of AD is equals to 91 root 81, root 81, and we all know that 81 is a square of 9. So the value of the AD will comes to 9 centimeter. So dear students, that's how you simply find out the length of AD, means the first part here. So first part आपने बिल्कुल easily simply यहाँ पे find किया। Now अब हम बात करते हैं second part के लिए। So second part में हमारे पास क्या given है, यहाँ पे हमें निकालना है area of trapezium ABCD जो trapezium है उसकी एरिया को हमें फाइंड करना है। So यहाँ पे मैं सिंपली रफ कर रहा हूँ इस पार्ट को। सो अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। सो इन दिस सेकंड पार्ट में एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स multiplied altitude. Now putting the values here, 1/2 into parallel sides are AB and DC, so AB plus CD, and altitude here is AD. Now putting the values here, 1/2 into the value of AB 40 and value of CD will be 15 and the value of AD अभी हमने फाइंड किया 9. Now 1/2 इंटू ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 55 इंटू 9। देन जब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे एंड डिवीजन करोगे, देन तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रेपेजियम ABCD। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया है सेकंड पार्ट भी। नाउ अब हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं, विच इज वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। सो अब हमें जो
ट्राइंगल BCD है उसके एरिया को फाइंड करना है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास इस कंप्लीट ट्रेपेजियम का एरिया है, हमारे पास इस ट्राइंगल का भी एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। सो बचा हमारे पास ये ट्राइंगल। सो क्या मैं बोल सकता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया किसके इक्वल होगा? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम after subtracting the area of triangle BCD, not ABD। सो अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे सिंपली जो ट्रेपेजियम का एरिया है उसमें से ट्राइंगल का एरिया ABD जो ट्राइंगल है उसके एरिया को सब्सट्रैक्ट करूँ, देन सिंपली मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे पास यहाँ पे एरिया आ जाएगा ट्राइंगल BCD के लिए। सो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, इन द थर्ड पार्ट में हम बात करते हैं यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर। सो ट्रेपेजियम का एरिया अभी हमने फाइंड किया, जो कितना है हमारे पास 247.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। नाउ सब्सट्रैक्टिंग 1/2 इंटू बेस। सो बेस यहाँ पे क्या है इस ट्राइंगल के लिए? बेस है हमारे पास AB एंड हाइट क्या है हमारे पास? AD। नाउ पुटिंग द वैल्यूज हियर। सो 247.5 माइनस 1/2 इंटू AB 40 सेंटीमीटर एंड AD अभी हमने फाइंड किया 9 सेंटीमीटर। देन इट विल कम्स टू 2 एंड 9 2 टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 18। देन 247.5 माइनस 180, देन इट विल कम्स टू 67.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल BCD। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए हैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज के, एंड आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए हैं। सो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट आ रहा है, देन वो अगेन रिपीट करके यहाँ पे क्लियर कर सकता है अपना डाउट। अगर कोई किसी स्टेप को मिस कर गया है बाय चांस, सो वो वापस से वीडियो को रिपीट करके वहाँ पे रिवीजन कर सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम सिंपली मूव करते हैं यहाँ पे। So dear students, in the question number 11 we have given a diagram. The diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 28 सेंटीमीटर बाय 32 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम का, और जो उसकी आउटर डायमेंशंस हमें गिवन है वो है हमारे पास 28 सेंटीमीटर बाय 32 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस आर 20 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। सो अब यहाँ पे जितने भी सेक्शंस प्रेजेंट हैं सभी सेक्शंस का हमें एरिया फाइंड करना है। अगर हमारे पास जो विड्थ है सभी सेक्शन की वो क्या है हमारे पास? सेम है। सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ सेक्शन 1। सो सबसे फर्स्ट हम जो सेक्शन 1 है हमारे पास उसके एरिया को फाइंड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, दिस इज द सेकंड सेक्शन, दिस इज द थर्ड सेक्शन एंड दिस इज द फोर्थ सेक्शन। नाउ ये हमारे पास सभी सेक्शंस हो गए हैं। नाउ अब अगर यहाँ पे मैं सिंपली बात करूँ सेक्शंस में, सो ये डिस्टेंस हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। देन हमारे पास जो बाकी की बची डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास? सिंपली बिकॉज ये कंप्लीट हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। क्या है ये? कंप्लीट हमारे पास 28 सेंटीमीटर है। मीन्स जो ये डिस्टेंस होगी हमारे पास, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये सभी किसके इक्वल होगी? ये सभी हमारे पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगी। बिकॉज 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर इधर, और टोटल बीच में 20 सेंटीमीटर, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो एरिया होगा सेक्शन का, सो एरिया ऑफ सेक्शन, सो सेक्शन की अगर मैं यहाँ पे एक रफली फिगर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक रफली फिगर आएगी। नाउ ये जो हमारे पास गिवन है 20 सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, और ये है 20 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन।
कुछ इस तरह से हमारे पास क्या होगी, यहाँ पे फिगर होगी। नाउ अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें इसको, ये लगभग किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है एक ट्रेपेजियम के इक्वल। आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम which is equals to 1/2 into sum of parallel sides multiplied by altitude. Now 1/2 into sum कितना आएगा पैरेलल साइड्स का 28 plus 20 then multiplied by altitude which is 4. Now 2 times then ऐड करके आ जाएगा 48 multiplied by 2 then ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्शन. सो ये हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास ये इसका हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, एरिया आ गया है. नाउ डियर स्टूडेंट जो सेक्शन फर्स्ट होगा और जो सेक्शन थर्ड होगा इन सभी की, इन दोनों की जो हमारे पास यहाँ पे एरिया होगा वो इक्वल आएगा, वो एरिया हमारे पास इक्वल आएगा बिकॉज दोनों की जो डायमेंशंस है सभी डायमेंशंस वो इक्वल है. सो ये एरिया हमारे पास क्या होगा, ये एरिया सेक्शन 1 का भी होगा और सेक्शन थर्ड का भी होगा. सो अगेन मैं यहाँ पे सेक्शन थर्ड के लिए एरिया को फाइंड करके नहीं दिखाऊंगा बिकॉज सेम हमारे पास फॉर्मूला होगा, सेम हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, वैल्यूज हो जाएंगी. सो डियर स्टूडेंट्स नाउ अब हम बात करते हैं एरिया नंबर जो सेक्शन है हमारे पास सेकंड सेक्शन के लिए. सेकंड सेक्शन के लिए यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ सभी को. नाउ अब देखो सेकंड सेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे एरिया सेम क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है हमारे पास. क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया. चलिए अब देखते हैं क्या डिफरेंस आया. बिकॉज अब देखिए जब हम सेकंड की बात करेंगे सेकंड सेक्शन के लिए, सो यहाँ पे जो इसका ये वाली लेंथ होगी 32 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये वाली हमारे पास 24 सेंटीमीटर हो जाएगी. सो चलिए देखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन 2. सेक्शन 2 में लाइक दैट बिल्कुल सेम फिगर रहेगी, बस डायमेंशंस यहाँ पे हमारे चेंज हो जाएंगे. दिस इज 4 सेंटीमीटर अगेन, दिस इज 32 सेंटीमीटर एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर. नाउ अगेन ये भी हमारे पास एक ट्रेपेजियम है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/sum of parallel sides. पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास 32 plus 24 and multiplied by the altitude which is equals to 4 सेंटीमीटर. देन ये हमारे पास कितनी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 56 multiplied by 2 which is equals to 112 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्शन. ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, दिस इज द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्शन. सेकंड सेक्शन का ये हमारा एरिया आ गया है. सो डियर स्टूडेंट्स ये एरिया सेकंड सेक्शन के लिए भी होगा और साथ साथ फोर्थ सेक्शन के लिए भी होगा बिकॉज फोर्थ सेक्शन की भी डायमेंशंस क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम एज इट इज यही रहेंगी. सो डियर स्टूडेंट्स आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आ गया है अच्छे से. बस आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है केयरफुली. उसमें जो डाटा गिवन है जो आपको फाइंड करना है उसको फिर डायग्राम के बेसिस पे आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली बहुत ही. बिकॉज अगर आपने यहाँ पे एक बार ये समझ लिया है कि आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है देन आपका फिर क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. इन द क्वेश्चन नंबर 12 इन द एडजॉइनिंग क्वाड्रिलेटरल ABCD. हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ABCD. द एंगल BAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड द एंगल BDC विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू द 90 डिग्री. मीन्स बोथ दीज एंगल्स आर राइट एंगल्स. नाउ all the measurements are in centimeter. Find the area of the quadrilateral ABCD. ABCD जो हमारा quadrilateral है हमें उसके एरिया को फाइंड करना है. Now अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें जो quadrilateral ABCD है it consists of 2 right angle triangles. इस जो quadrilateral है इसमें हमारे पास 2 right angle triangles हमें given है. अगर मैं दोनों के right angle triangles के एरिया को फाइंड करके उनको मैं ऐड कर दूं देन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा. बट उसके लिए सबसे फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, इन दोनों ट्राइंगल्स का हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड या फिर हाइट पता होनी चाहिए. और दोनों ही ट्राइंगल्स के लिए हमारे पास जो यहाँ पे हाइट होगी फर्स्ट ट्राइंगल के लिए हमारे पास BD हो जाएगी और सेकेंड ट्राइंगल के लिए हमारे पास जो हाइट है AD वो हमें ऑलरेडी गिवन है. चलिए ऑब्जर्व करते हैं अब यहाँ पे सिंपली हम. इन
ट्राइंगल ए बी डी। सो ट्राइंगल ए बी डी की हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट। सो राइट एंगल ट्राइंगल है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम I can simply write here the square of BD is equals to the sum of square of AB plus AD. Now putting the values here, so BD की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू हमें है 6 गिवन और AD की वैल्यू है हमें 8 गिवन। नाउ BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 प्लस 64, then it will comes to 100, then BD square is equals to 100, then it will comes to 10 centimeter. So dear students, ये हमारे पास यहाँ पे BD की वैल्यू आ गई है और BD हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे हाइट है। किसकी हाइट है हमारे पास, ये यहाँ पे सिंपली नहीं हाइट नहीं है, ये हमारे पास सिंपली यहाँ पे बेस आ गया है ट्राइंगल का। नाउ अब हम बात करते हैं हम सिंपली यहाँ पे सेकंड ट्राइंगल के लिए। सो सेकंड ट्राइंगल के लिए याद रखना डियर स्टूडेंट्स, बीडी की वैल्यू यहाँ पे फिगर में नोट कर रहा हूँ मैं, 10 सेंटीमीटर आ गई है। नाउ अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के लिए। सो सेकंड ट्राइंगल में अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डीसी के लिए। नाउ इन ट्राइंगल बीडीसी, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD square plus DC square. Now the value of BC we have given 26, value of BD we already find 10, and we have to find out the value of DC square. Then the square of 26 is 676 and this is 100 plus DC square. Now DC square is equals to 676 minus 100, then it will comes to 576. Now DC is equals to 576 root, then it will comes to 24 सेंटीमीटर. Now अब हमारे पास DC की भी वैल्यू आ गई है जो है 24 सेंटीमीटर. Now अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, एरिया को फाइंड कर सकते हैं बोथ द ट्राइंगल्स और बोथ द ट्राइंगल्स. सो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं. So dear students, so I can simply write here that the area of the quadrilateral ABCD is equals to the area of triangle BAD plus the area of triangle BDC. Now पुटिंग दी वैल्यू है 1/2 इंटू बेस. बेस क्या होगा हमारे पास, ट्राइंगल बी ए डी का बेस हो जाएगा हमारे पास ए बी इंटू हाइट क्या हो जाएगी ए डी. सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल प्लस 1/2 इंटू सेकेंड ट्राइंगल बी डी सी के लिए हमारे पास बेस क्या होगा बी डी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी डी सी हो जाएगी. नाउ पुटिंग दी वैल्यूज हियर 1/2 इंटू ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ए डी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर. नाउ 2 से डिवाइड हो गया 3 टाइम्स. नाउ प्लस 1/2 इंटू वैल्यू ऑफ बी डी इज इक्वल्स टू 10 एंड द वैल्यू ऑफ डी सी इज इक्वल्स टू 24. नाउ सिंपली सो 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया इसको 5 टाइम्स. नाउ अब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है 3 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 24. नाउ डियर स्टूडेंट, जब आप इनको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ऐड करोगे देन इट विल कम्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसका हमारे पास ये क्या आ गया है, एरिया आ गया है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से मैंने यहाँ पे फाइंड किया है एरिया को जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन भी. नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16. सो ये सभी क्वेश्चन भी सेम इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड हैं.
सो आई होप अब आप इजीली बाकी के बच्चे रिमेनिंग क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस हमारे पास रिमेनिंग है उन सभी को यहाँ पे इजीली सॉल्व कर लोगे, बिकॉज ये जो लेक्चर है हमारा काफ़ी लेंथी हो गया है, मोर देन 1 आवर। सो इससे आगे कंटिन्यू करना लेक्चर डिफिकल्ट होगा, बिकॉज काफ़ी लॉन्ग पीरियड हो गया है लेक्चर के लिए। सो अब आप इजीली यहाँ पे सिंपली आप बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज सभी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी क्वेश्चंस ये समझ में आ गए, क्वेश्चन नंबर 1 to 12, एंड आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं सभी कंसेप्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर।